اب کچھ موضوعات رہ گئے تھے، کچھ ٹاپکس اور کچھ پہرائے، کچھ اسپیکٹس اس کے رہ گئے تھے جس کو ڈسکس کریں گے آج۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ دوبارہ تشریف لے کر آئے تاکہ ہم جنگ بدر کے مختلف اور اسپیکٹس کے اوپر بھی گفتگو کر سکیں۔ میں چاہ رہا ہوں حضرت علی اور حضرت حمزہ کے حوالے سے بہت ایک جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کے بڑے زبردست قصے ہیں، اور آپ نے بڑے کفاروں کو جو ہے وہ اس میں طے کیا، اور خاص طور پہ یعنی جتنے مسلمانوں نے ٹوٹل تمام مسلمان فوج نے جتنے وہاں پر کفار کو مارا، صرف اور صرف ان دونوں نے اکیلے نے ان دونوں کو مارا تھا۔ تو ان کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ کچھ آپ احوال سنائیں۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابو جہل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا، تو آپ کے چچا حضرت حمزہ کو پتہ چلا اس بات کا، حالانکہ اس وقت وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اچھا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھتیجے میں آپ کی اس بے عزتی کا بدلہ لے کر آیا ہوں ابو جہل سے، جو انہوں نے آپ کو کہا نا، میں بس ٹھیک ٹھاک اس کو کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا، مجھے اس بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور چچا نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ایک محبت، ایک بات۔ پھر اس شجاعت کا یہ عالم تھا جب حضرت دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے، اور وہیں تھوڑی بہت عبادت بھی کرتے، اور نماز وغیرہ کا اہتمام بھی وہیں کرتے، اگرچہ نماز اس وقت فرض نہیں تھی، تاہم کچھ نہ کچھ آپ اہتمام فرماتے۔ حضرت حمزہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اچھا، سیکورٹی کا سسٹم بھی دیکھیے کہ لکڑی کے دروازے تھے، اور لکڑی کے دروازے جس سے پھٹے لگے ہوتے ہیں تو پھٹیوں کے بیچ میں جھریاں ہوتی ہیں، اندر سے باہر نظر آتا ہے، اور باہر سے کوئی آنکھ لگا کر دیکھے تو اندر کا منظر بھی نظر آتا ہے۔ اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ گویا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم تعداد میں کم ہو اور وسائل تمہارے پاس نہیں ہیں تو اپنی سیکورٹی پوری رکھو، جو اس وقت کے وسائل تھے۔ کنڈی لگائی ہوئی ہے، باہر دستک ہوئی، اور صحابہ کرام نے احتیاطاً دروازے کی جھریوں سے دیکھا۔ یعنی یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ تم اگر کسی جگہ مخفی طور پر کچھ میٹنگ کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، کسی نے باہر بیل دی ہے تو ایک دم جا کے دروازہ نہیں کھول دو۔ جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کیمرے والے گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے دیکھا جاتا ہے باہر کون ہے، پھر اس کو بلانا ہے، اس کے لیے کنڈی کھولنی ہے نہیں کھولنی ہے۔ صحابہ نے دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، باہر عمر ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اور تلوار تو عرب عموماً رکھا کرتے تھے کہ وہ ان کا ایک کلچر تھا، یہ نہیں کہ بھی لڑنے جائیں گے تو ہاتھ میں ہوگی، بس ان کا کلچر، جیسے سکھ ایک پگڑی سر پہ رکھتے ہیں خاص طریقے سے بندی ہوئی، وہ ان کا کلچر ہے۔ تو وہ حضرت عمر تلوار بھی لیے ہوئے ہیں، باہر عمر ہے۔ گویا وہ کچھ تھوڑے سے سہمے کہ وہ دروازے پر آ گیا ہے، اور ہم تو اندر ظاہر بات ہے وہ تبلیغ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہتھیار بھی نہیں ہے، عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کنڈی کھولو، دروازہ کھولو، اللہ کی قسم اگر بھائی بن کر آیا ہے تو ہم سینے سے لگائیں گے، اور اگر دشمنی اور برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، چنانچہ کیا جب عالم ہے بہادری۔ دروازہ کھولا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھولے، انہوں نے بھی ہاتھ کھولے، اور حالانکہ وہ بھی بڑا تکڑا پہلوان قسم کا، اور قد کاٹ ہر قسم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دبایا نا اسے دبانے سے جو ہے وہ ایسا اپنی کمزوری اور بے بسی آپ کے آگے، اور آپ کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس کو اسی وقت ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ تو گویا اس وقت بھی، یعنی جب ایک طاقتور دشمن دروازے پر ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو، محبت سے آیا ہے تو سینے سے لگائیں گے، اور اگر برے ارادے اور نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہی اسد اللہ تھا، اللہ رب العالمین کا شیر، سبحان اللہ۔ اللہ کا شیر۔
और ये वाकई अल्लाह के शेर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मौक़ों पर इन्हें बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा। खुद खैबर के दिन भी रसूलुल्लाह सल्लम ने उस वक्त सहाबा किराम को हैरत में डाला जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी घर में थे, उनकी आंखें दुखती थी और आपने एक दिन पहले पेशीन गोई की कि कल मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह उसके हाथ पर मुसलमानों को फ़तह देगा। सुभान अल्लाह। और ये इतना बड़ा एज़ाज़ था, सारे सहाबा इस जुस्तजू में थे और इस तमन्ना और तजस्सुस और इस इल्तिजा में थे कि काश ये शर्फ हमें मिल जाए, और इंतज़ार भी था और ये भी कि किसको मिलता है। जब अगले दिन सुबह हुई और वो वक्त आया जब अल्लाह के रसूल ने परचम देना था, तो आपने पूछा मेरा अली कहाँ है। साहबा ने कहा रसूलल्लाह वो तो आंखें दुखती हैं, अभी मजलिस में नहीं है। आपने फरमाया बुलाओ। जब उनको बुलाया गया तो आपने अपना लुआब मुबारक सैयदना अली अल मुर्तज़ा की आँख में लगाया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मेरी आंखें ऐसे हो गईं जैसे मुझे कभी तकलीफ़ थी ही नहीं। एक तो होता है ना धीरे धीरे दवाई असर करती है और धीरे धीरे आराम आ जाता है, बस ऐसे लगाया और तकलीफ़ काफूर हो गई जैसे थी ही नहीं। आपने झंडा पकड़ाया और वो जो पेशीन गोइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर की ज़ुबान से मिली थी वो आपकी झोली में आई। अल्लाह उससे राज़ी है और आप अल्लाह से राज़ी हैं। मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा, अल्लाह उसके हाथ पे फ़तह देगा। ये सारी चीज़ें, और अल्लाह ने जब उनको अल्लाह के रसूल ने भेजा, वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह दी। और यहूदियों का जो बड़ा मरहब, जो उनका बड़ा सरदार था, और उनको ललकार के, और अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह को गुरूर बहुत पसंद है। जब मुसलमान किसी काफिर के सामने, किसी जाबिर के सामने सीना सफ़र होकर, सीना तान कर बात करे, अल्लाह को मुसलमान की ये अदाब बहुत भाती। हज़रत अली ने कहा मैं वो शख्स हूँ कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। और फिर जब तलवार का वार किया ना, सर को ऐसे ऐसे चीरा जैसे सीधी लकड़ी को ना बीच में काटते हैं आरे से और उसको दो टुकड़े करते हैं, ऐसे। क्या कहना है? और दुनिया ने देखा कि भी अब मरहब की लाश पड़ी है, मरहब नहीं है। तो यानी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई मौक़ों पर अपनी बहादुरी के ऐसे ही जौहर दिखाए और ग़ज़वा बदर में भी शरीक रहे, इसके बाद की जंगों में भी शरीक रहे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी भी थे, दामाद भी थे, और फिर बचपन ही से चूँकि आपके साथ थे, आपकी तरबियत याफ्ता थे माशाल्लाह। तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लम के अंदर जो शुजाअत और बहादुरी का जो जौहर था वो आपकी तरबियत से यकीनन इधर भी मुंतकिल। माशाल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और जंग बदर, ग़ज़वा बदर को के हवाले से जो मज़ीद जो एस्पेक्ट्स हमें कवर करने हैं वो कवर करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कारी साहब, एक ये कि ज़ाहिर है हमने ये डिस्कस कर लिया कि 313 जो सहाबा कराम अहले बैत उसमें शामिल थे, उनकी इस्तकामत के ऊपर बात हो गई, अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी नुसरत की, इसके ऊपर भी बात हो गई। अब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओवरऑल हिकमत अमली थी वो तो हमने कवर कर ली, मगर क्या मुसलमानों में भी कुछ लोग शहीद हुए? क्या इससे भी ये बात क्योंकि साबित होती है कि अगर हिकमत अमली अच्छी थी तो फिर शहदा भी उस हिसाब से होने चाहिए थे? जज़ाकल्लाह, मुसलमान शहीद तो हुए लेकिन बहुत कम तादाद थी। अच्छा। जिस तरह ये अगर आजकल के तनासब से देखा जाए, जिस तरह सहाबा किराम की तादाद थी ना, और उधर जिस तरह उनकी तादाद और उनके वसाइल थे, उससे ऐसा लगता है मुसलमानों का एक भी नहीं बचना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुफ़ार को इतना नुकसान पहुंचाया और मुसलमानों का इतना हुआ जैसे आटे में नमक, जैसे कुछ 6-7 के करीब तकरीबन मुहाजिरीन में से और इतने तकरीबन या 1-2 ऊपर नीचे अंसार में से, और कुल मिला के कुछ तकरीबन 13-14 अफराद दोनों तरफ से, अंसार से भी मुहाजिरीन में से भी शहीद हुए। और बाकी कुफ्र का तो कमर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोड़ के रख दी।
और हत्ता कि वो अपना माल, असबाब, मालो मता, सवारियाँ सब कुछ छोड़ के भाग निकले। और जब वो हत्ता कि वो लाशें तक उन्होंने नहीं उठाई, यानी हवास बाख्ता ऐसे हुए कि वो अपने मरने वालों की लाशें भी छोड़ के भाग गए। सुभान अल्लाह। और फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने उनकी लाशों को उठवाकर एक गड्ढे में डलवाया, और गड्ढे में डलवाने के बाद फिर उनसे खिताब भी किया, लाशों से खिताब किया रसूलुल्लाह सल्लम ने। अच्छा। गड्ढे के किनारे खड़े हो गए और उनसे कहा कि मेरे रब ने जो मुझसे वादे किए थे मैंने तो उन्हें सच्चा पा लिया, क्या जो तुमसे वादे हुए थे तुमने उन्हें सच्चा पाया? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए सामने और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों से बातें करते हैं, मरने वालों से आप बातें करते हैं? आपने फरमाया, इन्नहुम लयस्मऊन अल-आना उमर, इस वक्त ये लोग सुन रहे हैं, यानी ये हमेशा की बात नहीं है। लयस्मऊन अल-आना, आन का लफ्ज़ जो है यानी समात को महदूद कर रहा है कि इस वक्त मेरे जुमले इन्हें सुनाए जा रहे हैं। यानी क्या मुर्दे भी सुनते हैं? जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, मैं उस तरफ आता हूँ। यहाँ जो हज़रत उमर को अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, और एक रिवायत में आता है ये तुमसे भी ज़्यादा सुन रहे हैं। अच्छा? तुमसे भी ज़्यादा सुन रहे इस वक्त। अच्छा। ये जुमले अल्लाह ने सुनवाए, क्यों सुनवाए? मुर्दा नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह किसी को भी सुनवाए, ना सुनवाए तो जिंदों को भी ना सुनवाए, और सुनवाए तो मुर्दों को भी सुनवा दे, लेकिन उसे फार्मूला नहीं बनाते। लयस्माउन अल-आन के जो अल्फाज हैं कि इस वक्त सुन रहे हैं, ना इससे पहले सुनते थे ना इसके बाद सुनेंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ बात, ये बात मेरी अल्लाह इनको सुनवा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बच्चा दीवार पे चढ़ता हो और बार बार फिर ऊपर से नीचे आता हो, आप उसे बोले बेटा आराम से बैठ जाओ, गिर जाओगे, इस शरारत नहीं करो, गिर जाओगे, वो मान ही नहीं रहा बात। थोड़ी देर बाद आखिर वो गिर ही गया। अब जब गिर गया, आप उसे उठाते तो हैं, लेकिन पहले एक उसको सबक दिलाने के लिए एक जुमला कहते हैं। अब मज़ा आया? मैं जो तुम्हें इतनी देर से कह रहा था कि नहीं चढ़ो नहीं चढ़ो, मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, अब टें टें करता है, रोता है, अब मज़ा आया? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के वो जुमले इसलिए सुनवाए कि नबी करीम ने जो इतने अरसे तक उनको वाज किया वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता था। कारी साहब, क्या यानी कोई भी मुर्दा नहीं सुनता? यानी अल्लाह के महबूब लोग तो जाहिर है सुनते मैं होंगे। उसी तरफ, मैं पहले इस किस्से को निपटा लूँ, मैं आप ही के सवाल पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हौसला दें और फिर सुनने का हौसला भी रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। तो अल्लाह ताला ने वो जुमले खुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम के कलीब बद्र वालों को, उनको आपने सुनवाए। जहाँ तक मुर्दे के सुनने का ताल्लुक़ है, अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इला वल्लौ मुदबिरीन। ऐ हबीब, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते, ना आप बहरे को सुनवा सकते हैं, ख़ासकर जब वो पीठ दे के खड़ा हो, और ना आप मुर्दे को सुनवा सकते हैं। कुरान मजीद ने नफ़ी की कि आप, जब अल्लाह के रसूल मुर्दे को नहीं सुनवा सकते तो हम कौन होते हैं? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि शाह साहब क्या मुर्दे सुनते हैं? उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, हमारी तो जिंदे नहीं सुनते, तू मुर्दों की बात करता है। ये जो आप कुरान की आयत की तरफ रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे तो मुर्दों से मुराद वो लोग नहीं है कि जो ईमान नहीं लेकर आते। ना, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। अच्छा, फिर मरने वालों के लिए कुरान मजीद में दूसरी जगह क्या फरमाया? अलहुम अर्जुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यब्तशून, क्या इनके पास ऐसे पाँव हैं जिससे ये चलें, इनके पास ऐसे हाथ हैं जिससे ये पकड़ें छुएं? अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, इनके पास ऐसी आंखें हैं जिससे ये देखें? अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा, क्या इनके पास ऐसे कान हैं जिससे ये सुने? तो अल्लाह ताला, अब मुर्दे के कान तो होते हैं ना, मुर्दे की आंखें भी होती हैं, मुर्दे के हाथ भी होते हैं, मुर्दे के पाँव भी होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कोई मुर्दा कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, कभी वो गुस्ल खाने में गुस्ल मैयत करने के लिए खुद गया? नहीं।
تو कफन उनका जिस्म है ना, हैं अल्लाह के महबूब जो लोग होते हैं वो तो जाहिर है उनका असल चीज जो है बंदे के अंदर बुलवाने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, उसको हरकत देने वाली, वो करंट है जिसे हम रूह कहते हैं। अच्छा और रूह और जिंदगी, मौत और जिंदगी का फर्क यही है कि जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला वो करंट हमारे जिस्म में छोड़ देता है और मौत में वो करंट हमारे अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला निकाल लेता है हमारा जिस्म। जैसे ये बत्ती है, बत्ती तो रहेगी, लाइट चली जाए लेकिन अंधेरा हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मेरे ऊपर दुरूद भेजो, उसको मैं सुनता हूँ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है आपकी बात से। ये रिवायतें सही नहीं है अच्छा जिसमें ये है कि मेरी कब्र पर कोई आके पढ़े तो मैं खुद सुनता हूँ, तुम भेजो तो मैं सुनता हूँ, ऐसी कोई भी रिवायत मुहद्दिसीन की नज़र में सही नहीं है। कैसे कैसे सही अलबत्ता नहीं? एक रिवायत अबू दाऊद की ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्ज़, ज़मीन में फ़रिश्ते चलते फिरते हैं, आबाद हैं, जो भी मेरी उम्मत का कोई बंदा मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला मुझे पहुंचा देता है उन फरिश्तों के ज़रिए। तो अल्लाह ताला का पहुंचाना, जैसे हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं, अगर अल्लाह ताला हमारी दुआ हमारे वालिद को पहुंचा दे और वालिद पूछे कि मेरा ये दर्जा या मेरा ये अजर किस बुनियाद पर बढ़ा, तो अल्लाह बता दे उसे कि तेरे बेटे ने दुआ की है, तो ठीक है, ये पहुंचाया जाना है। कुरान में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि ये मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के अमाल के ऊपर शाहिद हैं। तो ज़ाहिर है शाहिद तो वही होगा जो सुनता भी है, जो देखता भी है, जो सब कुछ। नहीं, पहली बात तो यह है कि सिर्फ रसूलुल्लाह को नहीं कहा गया, हमें भी कहा गया शाहिद। ये कहा गया कि रसूल जो हैं वो तुम पर गवाह हैं और तुम जो हो पिछली उम्मतों पर गवाह हो। ये 17वें पारे के बिल्कुल आखिरी सफ़े पर अच्छा ये अल्फाज आते हैं कि वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, कि रसूल तुम पर गवाह है और तुम लितकूनु शुहदा अलन्नास, तुम दूसरी उम्मतों के लोगों पर तुम गवाह हो, फिर हम भी हाज़िर नाज़िर हैं। वही सिफत जो रसूल की बताई गई वही हमारी भी बताई गई, फिर इसका मतलब ये है हम भी हाज़िर नाज़िर हैं, हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, जबकि हमने साबिक़ा उम्मतों को नहीं देखा। वो गवाही कैसे देंगे? हमारे कुरान में, हमारे रसूल की तालीमात में साबिक़ा उम्मतों के जो वाक़यात हैं, आज मुसलमानों ने पढ़े हैं, समझे हैं। हमने जो कुछ दीन लिया है अल्लाह के रसूल से लिया है, कुरान भी उन्हीं से लिया, हदीस भी उन्हीं से ली, अहकामात भी उन्हीं से लिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अथेंटिक और दलील है, बुरहान है कि हम इस पर गवाही देंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, सब पैगम्बर आए और इन पर अल्लाह ने अपनी हुज्जत कह दी। अच्छा कारी साहब, इसमें ये भी है ना कि जो शहीद हैं फॉर एग्जांपल, उनको भी कहा गया है कि वो मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा हैं। तो एक शख्स जो मुर्दा ही नहीं है, वो तो है ही ज़िंदा, उसको खाना भी दिया जाता है, उसको रिस्क भी दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, यानी एक ज़िंदा इंसान जैसे करता है वैसे वो ज़िंदा है, तो फिर उसके ऊपर मुर्दा के कावानीन तो लागू होंगे ही नहीं। किस पर? वो जो शहीद है, यानी शहीद तो है ही ज़िंदा, तो उसके ऊपर मुर्दा वाले कानून कैसे क्यों लागू होंगे? अभी जो गज़वा बदर का हमने टॉपिक रखा ना, अल्लाह ताला ने शहीद को ज़िंदा इसलिए नहीं कहा कि वो मरता नहीं है, बल्कि शहीद होता ही वो है जो मरे। दो भाई लड़ने के लिए जाएं, एक भाई जिंदा आए और एक भाई की लाश आए, तो दोनों में शहीद कौन है? दोनों में कौन शहीद है? जाहिर है जो, वैसे तो शहीद कुरान में ये भी आया कि जो ईमान लेकर आया वो भी शहीद है। मैं साथ बैठा हूँ, घबराए नहीं आप, क्यों लोग मुझे कहेंगे, आपको थोड़ी कहेंगे। आप बिला झिझक कहें, शहीद कौन है? शहीद जो ज़ाहिरी तौर पर, जिसकी लाश आई है। हाँ, ज़ाहिरी। और लाश जिंदे की होती है या मरने वाले की होती है? हाँ, ये असल में इंसानों को ये मुगालता था। कुरान ने बोला कि नहीं, तुम इनको मुर्दा नहीं कहो, ये अगरचे मुर्दा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो, कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तल, इनको मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। हाँ, ये भी कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, कत्ल हो गए, गोया अल्लाह ने उनका कत्ल मान लिया। हाँ, लेकिन वो जिंदा है ना, तुम मुर्दा कहो नहीं। अच्छा, ये नहीं कहा कि है ही नहीं, अच्छा, ये कि तुम मुर्दा कहो नहीं, इसलिए कि मुर्दा का लफ्ज़ हौसले पस्त कर देने वाला लफ्ज़ है। कुफार ने ये कहा कि देखो जी ये दुनिया से भी गए
और आखिरत पर तो उनका ईमान वैसे नहीं था। दुनिया भी इनसे गई, आगे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। अपना सब कुछ बर्बाद कर गए जो मारे गए। अल्लाह ने कहा नहीं, अबदी ज़िंदगी इनको अभी नसीब हुई है, क्योंकि वो जो जन्नत में हम इनको जो कुछ देने वाले हैं, तुमने तो उसका कुछ भी नहीं देखा, तुम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुजाहिदीन के लिए मौत का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि ये इनके हौसले पस्त न हो। वरना मुझे बताइए, एक बंदा जब शहीद हो जाता है, उसकी बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है? ऑब्वियसली वो तो करेगी, जाहिर है। करेगी। तो मगर ये ज़ाहिरी मौत का और जिस बीवी का खामद जिंदा हो, उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती। शहीद का तरका बटेगा? जाहिर है। अब मैं आपके जी टीवी चैनल पर आ गया हूं तो घर वालों को चाहिए मेरा तरका बांट दे पीछे, ऐसा तो नहीं कर सकता। अच्छा, जो लेकिन जब मरूंगा जब तो बटेगा ना। अच्छा कारी साहब, मेरे ख्याल से इसके ऊपर, ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं, ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर आप बताइएगा कि इसके ऊपर पूरा मुफस्सल प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि क्या मुर्दे सुनते हैं, क्या इस दुनिया से जो लोग चले जाते हैं, जो अल्लाह के महबूब लोग भी हैं, वो इसको सुनते भी हैं और हमारी बातें सुन भी रहे हैं, और क्या हम उनसे मदद मांग भी सकते हैं। इसके ऊपर आप बताइएगा कमेंट्स में कि इसके ऊपर पूरा मुफस्सल प्रोग्राम करें या ना करें, क्योंकि ये अभी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे कुछ सवालात हैं, मगर अगर मैं इसके ऊपर मजीद बात करता रहूँगा तो हम जंग बदर के मौजू से हट जाएंगे। और कारी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमें शहादत बख्शते हैं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि इनके साथ पूरा प्रोग्राम करना है तो ज़रूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और जंग बदर के ऊपर फिर बात करते हैं। जंग बदर के हवाले से बहुत सारी बातें हो गई, तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक बात ये भी है कि इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। कारी साहब आपसे सवाल ये है कि इसको यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? जज़ाकुमुल्लाह। असल में फ़ुरक़ान इस एतबार से थे कि इस जंग ने मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान, इस्लाम के दरमियान और कुफ्र के दरमियान एक हद फासिल कायम कर दी। एक यानी ऐसे वाज़े दीवार खड़ी कर दी कि ये इस्लाम है और ये कुफ्र है। और फिर इस एतबार से भी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इसमें फ़तह दी। हक़ की हमेशा ये निशानी रही है कि हक़ हमेशा गालिब आता है। उस एतबार से भी फिर मुसलमानों की ये पहली जंग थी। लोगों के दिलों में जो शकूक व शुबात थे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, उस एतबार से भी इससे ये फ़र्क पता चला कि नहीं ये हक़ वाले हैं। तीसरा, मुसलमानों की सफ़ों में जो मुनाफिक घुसे हुए थे और फिर बाद में इजाज़त मांग मांग के जाते रहे, और उनके साथ ये भी निखेड़ा हो गया, और ये भी अल्लाह ताला ने सहाबा पर खोल दिया कि ये लोग मुनाफिक हैं, पता चला, उनको वाज़े हो गया। तो यानी जिस पहलू से भी देखा जाए ये फ़र्क करने वाली है। और फिर इस एतबार से भी कि मुसलमान अगरचे कमज़ोर भी हैं, लेकिन अगर अल्लाह से नुसरत मांगते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को ज़ाय नहीं करता, मुसलमानों की हिमायत करता है। जिस तरह इकबाल ने कहा कि फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। वो एक मिसरा फिर भी मैं भूल गया इसका। ये दो मिसरे इकबाल को मैंने भी बहुत पढ़ा, मगर अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा। जी, तो मकसद ये है कि अगर आज हम अपना जज्बा, अपना ईमान, अपनी तलब, अपनी नेक नियति, अपना इखलास और अपनी दिल की पाकीज़गी और तहारत को वैसा बना लें जैसा बदर में थी, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला तो वही है। कहते हैं ना कि साकी के नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, हम ही बदल गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहमतों का मंबा है, जो रहमत और फ़ज़ल का जाम लिए अपनी मखलूक को पिला रहा है, वो साकी तो वही है। हम बदल गए, हम इस काबिल नहीं रहे कि वो हमें रहमत और नुसरत का वो जाम पेश करे। और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने इससे ये भी हम पर वाज़े किया कि तुम जिस कदर भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर तुम मेरे आगे रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मुझसे मांगते हो, तो मुझे मेरी रहमत, मेरी नुसरत, मेरा फ़ज़ल तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल तुम इसे पुरुमीद होकर मुझसे सवाल करोगे, जितनी भी कम तादाद में हो, ये कोई माने नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने हर एतबार से इसको फ़ुरक़ान रखा कि मुसलमानों पर इस्लाम की फ़तह वो वाज़े हुई, कुफ्र पर कुफ्र की शिकस्त वाज़े हुई, और मुसलमानों पर मुसलमानों का हक़ पर होना वाज़े हुआ, कुफ्र का बातिल होना वाज़े हुआ, कुफ्र का गुरूर टूटा, इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ,
मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी गई, नई जान आ गई इस जंग की फतह से। हर सहाबी जब जो लुटे पटे थे इस माल गनीमत से, उनको बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के भागे थे। तो अल्लाह ताला ने इस एतबार से इसे यौम फुरकान करार दिया है कि ये हर एतबार से कुफ्र और इस्लाम के दरमियान ये एक इम्तियाज़ है। माशाल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे मौजू को समेटा है कारी साहब। और क्योंकि अब हमारी सूरतों के हवाले से हमने एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, एक पूरी सीरीज़ उसके ऊपर रखी, और अब हम ग़ज़वात के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने जो जंगें लड़ी उस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू किया करेंगे। अभी आज हमारी जंग बदर का पूरा जो एक मुफस्सल तौर पे प्रोग्राम हमने कवर कर लिया है, उसका पस मंज़र और उसके मुहर्रकात के ऊपर भी गुफ्तगू कर ली।